केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 23/12/2018 का हल प्रश्न पत्र। भाग 1। पहला सामान्य अंग्रेजी। Question 1. Complete the sentence given below by using the correct form of the verb from the options that follow. I do not bother much about money. I dash about it all my life. Options are A. Will ever bother, B. Have never bothered, C. Don't bother, or D. Bothered. Answer is B. Have never bothered. Question 2. Choose the expression that best describes the word hoodlum. Options are A. A student who hoots and shouts, B. A neighbor who is rather nosy, C. A violent criminal, or D. A wayside hawker. Answer is C. A violent criminal. Question 3. Improve the bold phrase if necessary with the help of given options. If I had not told you, you will not know the truth. You will not know, highlighted. Options are A. You would not have known, B. You cannot know, C. You have not known, D. You would not be knowing. Answer is A. You would not have known. Question 4. Identify the phrase in the following sentence that may be erroneous. The training program A takes the form of B. A series of workshops, C. For the LDCs and UDCs, D. Answer is B. Takes the form of. It should be takes a form of. Question 5. Improve the bold phrase if necessary with the help of given options. George was laid to a rest beside his parents. Options are A. Lied to rest, B. Lied in rest, C. Lay in rest, or D. Laid to rest. Answer is D. Laid to rest. Question 6. Choose the expression that best describes the word fallible. Options are A. Apt to make mistakes or go wrong, B. Able to concoct stories, C. Able to stitch pieces together, or D. That which can be felled easily. Answer is A. Apt to make mistakes or go wrong. Question 7. Complete the sentence given below by choosing the correct form of verb from options that follow. Jim came yesterday. I do not know whether he dash today. Options are A. Shall come, B. Came, C. Will have come, or D. Will be coming. Answer is D. Will be coming. Jim came yesterday. I do not know whether he will be coming today. Question 8. Out of the given alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the bold word. A number of tenants have been evicted for not paying the rent. Options are A. Thrown out, B. Pardoned, C. Excused, or D. Sent out. Answer is D. Sent out. Question 9. Choose the word most nearly opposite in meaning to the given word, dusky. Options are A. Near, B. Sharp, C. Wild, or D. Bright. Answer is D. Bright. Question 10. Choose the meaning that best suits the following idiom. Be bound up with. Options are A. Be uninvolved in, B. Be tied to something for long, C. Be very busy or preoccupied, or D. Be overwhelmed by. Answer is C. Be very busy or preoccupied. 2. सामान्य हिंदी। प्रश्न 11। इनमें से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? विकल्प है A. अख, B. आखर, C. अक्षर, या D. अक्षर। उत्तर है D. अक्षर। अर्ध तत्सम शब्द है अक्षर। अर्ध तत्सम शब्दों में ध्वनि परिवर्तन मूल शब्द से बहुत कम होते हैं। अक्षर मूल शब्द है जिसका अर्ध तत्सम है। प्रश्न 12। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इस लोकोक्ति से सटीक अर्थ को दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। विकल्प है A. एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना, B. करेले की बेल का नीम के वृक्ष पर चढ़ना, C. करेले और नीम का रस मिलाना, या D. करेले और नीम का संयोग स्वास्थ्य के लिए हितकर होना। उत्तर है A. एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना। प्रश्न 13। तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? विकल्प है
ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि या डी स्वर व्यंजन संधि। उत्तर है बी विसर्ग संधि। तपोवन, तप प्लस वन, विसर्ग संधि। प्रश्न 14, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? विकल्प है ए नोन तेल, बी अन्न जल, सी पीना खाना या डी आचार विचार। उत्तर है सी पीना खाना। पीना खाना के स्थान पर खाना पीना सही युग्म है, शेष सभी संगत युग्म हैं। प्रश्न 15, जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है? विकल्प है ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष या डी द्विगु। उत्तर है सी तत्पुरुष। जल पिपासु, जल के लिए पिपासु, तत्पुरुष समास। प्रश्न 16, इनमें से कामायनी का काव्य रूप क्या माना जाता है? विकल्प है ए महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी एकार्थ काव्य या डी चरित काव्य। उत्तर है ए महाकाव्य। प्रश्न 17, वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। काव्य लक्षण के विषय में ये कथन किस आचार्य का है? विकल्प है ए मम्मट, बी भामह, सी विश्वनाथ या डी पंडित राज जगन्नाथ। उत्तर है सी विश्वनाथ। दी गई काव्य परिभाषा वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ की है। प्रश्न 18, उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं? उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो सके किए जा सके वर्ण कहते हैं। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं ए कृदंत, बी शब्द, सी प्रत्यय या डी वर्ण। उत्तर है डी वर्ण। प्रश्न 19, खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? विकल्प है ए पूर्वी हिंदी, बी बिहारी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी या डी पश्चिमी हिंदी। उत्तर है डी पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पृष्ठ 123। प्रश्न 20, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प है ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या डी वस्तुवाचक संज्ञा। उत्तर है सी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के पदार्थ में पाए वाले किसी धर्म या गुण का बोध होता है, जैसे प्रेम, क्रोध, ममता आदि। भाग 2, 1, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं। प्रश्न 21, भारत में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है? विकल्प है ए वूलर, बी लडोगा, सी रेंडियर या डी मलावी। उत्तर है ए वूलर। भारत में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील वूलर नगर कश्मीर राज्य में है। प्रश्न 22, भीमा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? विकल्प है ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी या डी महानदी। उत्तर है बी कृष्णा। भीमा नदी जो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में बहती है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। प्रश्न 23, 2015 में स्थापित हरित राष्ट्रीय लेखाकरण जीएनए योजना को रूप देने वाली विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है ए अशोक गुलाटी, बी पार्थ दास गुप्ता, सी कौशिक बासु या डी अमर्त्य सेन। उत्तर है बी पार्थ दास गुप्ता। प्रश्न 24, इनमें से किसका संबंध स्थानिक प्रजाति एंडेमिक स्पीशीज से है? विकल्प है ए वे प्रजातियां जिनकी आबादी में उस सीमा तक ह्रास हुआ जहां वे निकट भविष्य में संकटापन्न कोटि में पहुंच सकती हैं यदि निषेधात्मक कारक बने रहे। बी वे प्रजातियां जो अपने ज्ञात अथवा संभावित क्षेत्र में ढूंढने पर नहीं प्राप्त होती। सी वे प्रजातियां जो केवल किसी विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं, सामान्यतः प्राकृतिक या भौगोलिक रुकावटों के कारण अलग थलग होते हैं। डी वे प्रजातियां जिनकी आबादी छोटी हो और यदि उन्हें प्रभावित करने वाले निषेधात्मक कारक बने रहे तो उनके संकटापन्न व असुरक्षित कोटि में जाने की संभावना हो। उत्तर है सी वे प्रजातियां जो केवल किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं, सामान्यतः प्राकृतिक या भौगोलिक रुकावटों के कारण अलग थलग होते हैं। प्रश्न 25, 2018 के एशियन खेलों की पुरुष शॉट पुट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। विकल्प है ए धारुन अय्याज सामी ने, बी मोहम्मद अनस याया, सी तेजिंदर पाल सिंह तूर या डी नीरज चोपड़ा। उत्तर है सी तेजिंदर पाल सिंह तूर।
2018 में जकार्ता, इंडोनेशिया में हुए एशियन खेलों में शॉटपुट प्रतियोगिता में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न 26। किसानों के द्वारा ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सूर्य शक्ति किसान योजना SKY किस राज्य सरकार द्वारा की गई पहल है? विकल्प है A गुजरात, B मध्य प्रदेश, C राजस्थान या D उत्तर प्रदेश। उत्तर है A गुजरात। किसानों द्वारा ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सूर्य शक्ति किसान योजना की पहल गुजरात राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिससे किसानों की बिजली समस्या का समाधान हो सके। प्रश्न 27। इनमें से जलवायु का वो कौन सा रूप है जिसे हिमालय, एंडीज और एल्प्स के पर्वतीय क्षेत्रों में अनुभव किया जाता है? विकल्प है A आर्द्र न्यून तापीय जलवायु, B ध्रुवीय जलवायु, C उष्णकटिबंधीय जलवायु या D उच्च भूमि जलवायु। उत्तर है B ध्रुवीय जलवायु। प्रश्न 28। 973 में किस भौगोलिक क्षेत्र में अल्बेरूनी का जन्म हुआ? विकल्प है A अफगानिस्तान, B ताजिकिस्तान, C तुर्कमेनिस्तान या D उज्बेकिस्तान। उत्तर है D उज्बेकिस्तान। 973 में अल्बेरूनी का जन्म ख्वारज़्म, पश्चिम उज्बेकिस्तान में हुआ था। प्रश्न 29। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? विकल्प है A अशोक लाहिड़ी, B रमेश चंद, C YV रेड्डी या D NK सिंह। उत्तर है D NK सिंह। प्रश्न 30। 2030 तक प्राप्त कर लिए जाने वाले धारणीय यानी सस्टेनेबल विकास के लक्ष्य का भाग नहीं है। विकल्प है A सबके लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा, B सभी लड़कों और लड़कियों के लिए प्राइमरी तथा सेकेंडरी की निःशुल्क शिक्षा, C सहजता से प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण तक समान पहुंच या D गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक सार्वजनिक पहुंच। उत्तर है A सबके लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा। प्रश्न 31। कोलकाता खेल पत्रकार क्लब के द्वारा हाल ही में इनमें से किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नाम दिया गया है? विकल्प है A सुनील छेत्री, B अरुण घोष, C अरुण लाल या D सफीकी मोंडल। उत्तर है A सुनील छेत्री। कोलकाता खेल पत्रकार क्लब द्वारा सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल कप्तान को भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। प्रश्न 32। कीस्टोन प्रजातियां हैं। विकल्प है A वे प्रजातियां जो किसी ऐसे क्षेत्र में वास के लिए आती हैं जहां पहले कोई जीवन नहीं था, B पर्यावरण के साथ संतुलित अवस्था में कोई समुदाय, C वो प्रजाति जो अपने समुदाय को संरचना, संशोधन या भौतिक आवास को अपने लिए तथा अन्य प्रजाति के लिए प्रभावित करती है, या D वे प्रजातियां जिनका अपने समुदाय को ऊर्जा प्रवाह तथा संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उत्तर है D वे प्रजातियां जिनका अपने समुदाय को ऊर्जा प्रवाह तथा संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कीस्टोन प्रजातियां जैसे टाइगर, अंजीर का पेड़ यानी फिग ट्री, जिनके समुदाय से हटाने पर उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अर्थात यदि हम टाइगर बांध को हटा देते हैं तो शाकाहारी की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। प्रश्न 33। 2018 के एकेडमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर इनमें से किसे प्राप्त हुआ? विकल्प है A द शेप ऑफ वाटर, B डंकिर्क, C डार्केस्ट आवर और D ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। आंसर इज A द शेप ऑफ वाटर। प्रश्न 34। इनमें से कौन सा भारत के संविधान के भाग 3 का अंग नहीं है? विकल्प है A कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा कैद होने से बचाव, B न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, C कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, या D किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी अपराध का अभियुक्त हो अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उत्तर है B न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। प्रश्न 35। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 बुद्ध के जीवन की घटनाएं, A जन्म, B संबोधि, C प्रथम उपदेश, D परिनिर्वाण। सूची 2 प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, 1 बोधि वृक्ष, 2 चक्र, 3 गज, 4 स्तूप। उत्तर है जन्म, गज, संबोधि, बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश, चक्र, परिनिर्वाण, स्तूप। प्रश्न 36।
शेषाचलम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? विकल्प है ए 5520.2 किलोमीटर स्क्वायर, बी 3000.6 किलोमीटर स्क्वायर, सी 4755.9 किलोमीटर स्क्वायर और डी 765.6 किलोमीटर स्क्वायर। आंसर इज सी 4755.9 किलोमीटर स्क्वायर। प्रश्न 37, इनमें से कौन सी महिला टीम विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2018 की विजेता थी? विकल्प है ए जापान, बी भारत, सी चीन या डी रूस। उत्तर है सी चीन। 2018 में महिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप चीन ने जापान की टीम को हराकर जीती थी। प्रश्न 38, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? पृष्ठ 124। विकल्प है ए 150 सदस्य, बी 75 सदस्य, सी 50 सदस्य या डी 100 सदस्य। उत्तर है सी 50 सदस्य। प्रश्न 39, 2018 में प्रकाशित उपन्यास द वुमन इन द विंडो का लेखक कौन है? विकल्प है ए तारा वेस्टोवर, बी क्रिस्टिना हन्ना, सी ए.जे. फिन या डी लॉरा मार्शल। उत्तर है सी ए.जे. फिन। वर्ष 2018 में प्रकाशित उपन्यास द वुमन इन द विंडो के लेखक ए.जे. फिन हैं, जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सलाह दी है, क्योंकि वे घरों व खिड़कियों में ही जीवन यापन कर रही हैं। प्रश्न 40, इनमें से किस संस्था ने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित की? विकल्प है ए विश्व बैंक, बी यूएनडीपी, सी संयुक्त राष्ट्र संघ या डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। उत्तर है सी संयुक्त राष्ट्र संघ। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित की जाती है। प्रश्न 41, सूची 2 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का मिलान सूची 1 में दिए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से कीजिए। सूची 1, ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 39A, सी अनुच्छेद 42, डी अनुच्छेद 50। सूची 2, 1 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, 2 काम का अधिकार, 3 काम करने के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां तथा मातृत्व राहत, 4 समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। उत्तर है ए अनुच्छेद 41 काम का अधिकार, बी अनुच्छेद 39A समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, सी अनुच्छेद 42 काम करने के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां तथा मातृत्व राहत, डी अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। प्रश्न 42, सशक्त कार्यक्रम की घोषणा भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2018 में की गई है। विकल्प है ए विकास की परियोजनाओं में समुदाय की प्रतिभागिता निश्चित करने के लिए, बी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दबाव में आई परिसंपत्तियों के समाधान के लिए, सी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, डी ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए। उत्तर है बी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दबाव में आई परिसंपत्तियों के समाधान के लिए। प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दबाव में आई परिसंपत्तियों के समाधान के लिए सशक्त कार्यक्रम की घोषणा भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2018 में की गई है। प्रश्न 43, पंचायत का कार्यकाल होता है। विकल्प है ए पिछली पंचायत के विघटन की तिथि से 5 वर्ष, बी परिणाम घोषित होने की तिथि से 5 वर्ष, सी प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष या डी चुनाव की घोषणा की तिथि से 5 वर्ष। उत्तर है सी प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष। प्रश्न 44, जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा हो, जिसमें समय और स्थान के अनुसार उसका वितरण भी ठीक न हो, तो उसे कहा जाता है। विकल्प है ए पारिस्थितिक सूखा, बी कृषि सूखा, सी जल विज्ञान संबंधी सूखा या डी मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। उत्तर है सी जल विज्ञान संबंधी सूखा। प्रश्न 45, सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई। विकल्प है संगठीय बजट 2016-17, बी संघीय बजट 2008-2009, सी संघीय बजट 2010-11 या डी संघीय बजट 2015-16। उत्तर है सी संघीय बजट 2010-11।
सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार ने संघीय बजट 2010-11 में की थी। प्रश्न 46। भारत के किस राज्य ने आहार योजना की शुरुआत की जो शहरी गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराती है? विकल्प है ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी ओडिशा या डी राजस्थान। उत्तर है सी ओडिशा। आहार योजना जिसके अंतर्गत शहरी गरीबों को सस्ता भोजन, चावल, दाल, कढ़ी वितरित की जाएगी की शुरुआत ओडिशा राज्य ने की है। प्रश्न 47। सूची 1 में दिए गए अर्थशास्त्रियों का मिलान सूची 1 में उनसे संबद्ध विकास सिद्धांतों से कीजिए। सूची 1 ए पीसी महालनबीस, बी केएन राज, सी जेसी कुमारप्पा, डी वर्गीस कुरियन। सूची 2 1 रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन के लिए सहकारिता मॉडल, 2 कृषि क्षेत्र को सबल बनाना, 3 द्रुत औद्योगिकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र को सबल बनाना, 4 ग्रामीण औद्योगिकरण। उत्तर है पीसी महालनबीस, रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन के लिए सहकारिता मॉडल, बी केएन राज, द्रुत औद्योगिकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र को सबल बनाना, सी जेसी कुमारप्पा, ग्रामीण औद्योगिकरण, डी वर्गीस कुरियन, कृषि क्षेत्र को सबल बनाना। प्रश्न 48। मुगल दरबार में जिस सुलेखकार को सुनहरी कलम उपाधि से पुरस्कृत किया जाता था वो किस नाम से जाना जाता था? विकल्प है ए कमतारीन कलम, बी अंबारीन कलम, सी रोशन कलम या डी शिरीन कलम। उत्तर है सी रोशन कलम। मुगल दरबार में रोशन कलम सुलेखकार को सुनहरी कलम यानी गोल्डन पेन उपाधि से पुरस्कृत किया गया था। प्रश्न 49। इनमें से किस कानून के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के समक्ष सह अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकृति को अभियुक्त के विरुद्ध सबूत के रूप में माना गया है? विकल्प है ए टाडा 1985, बी आफ्स्पा 1958, सी यूएपीए 1967 या डी पोटा 2002। उत्तर है ए टाडा 1985। प्रश्न 50। इनमें से कौन से गैस की वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग की सामर्थ्य अधिक है? विकल्प है ए सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6, बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सी मीथेन CH4 या डी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। उत्तर है बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। प्रश्न 51। सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए और दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 ए जहाज महल, बी अंग महल, सी राइटर्स बिल्डिंग, डी सेंट जॉर्ज का किला। सूची 2 1 तमिलनाडु, 2 मध्य प्रदेश, 2 पश्चिम बंगाल, 4 नागालैंड। उत्तर है जहाज महल पश्चिम बंगाल, अंग महल नागालैंड, राइटर्स बिल्डिंग मध्य प्रदेश, सेंट जॉर्ज का किला तमिलनाडु। प्रश्न 52। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? विकल्प है ए वैदिक, बी अलवार, सी नयनार या डी जैन। उत्तर है सी नयनार। प्रश्न 53। इनमें से कौन से निक्षेप अंडों की टोकरी यानी बास्केट ऑफ एग्स स्थलाकृति का निर्माण करते हैं? विकल्प है ए हिमानी निक्षेप, बी हिमानी धौत मैदान, सी ड्रमलिन या डी नदी निक्षेप। उत्तर है ए हिमानी निक्षेप। प्रश्न 54। रूस के स्टेपी क्षेत्र में इनमें से कौन से मूल निवासी रहते हैं? विकल्प है ए मसाई, बी ट्वेरेग, सी बुशमैन या डी किर्गिज। उत्तर है डी किर्गिज। प्रश्न 55। भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है? विकल्प है ए जॉन मथाई, बी सुखमॉय चक्रवर्ती, सी केएन राज या डी पीसी महालनबीस। उत्तर है डी पीसी महालनबीस। पृष्ठ 125। प्रश्न 56। इनमें से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? विकल्प है ए मोहनजोदाड़ो, बी अमरी, सी हड़प्पा या डी कोट दीजी। उत्तर है सी हड़प्पा। व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान 1921 में हड़प्पा यानी पंजाब में खोजा गया था। प्रश्न 57। निम्नलिखित घटना का सही कालक्रम क्या है? 1 खिलाफत आंदोलन, 2 जलियांवाला बाग जनसंहार, 3 बारडोली का किसान आंदोलन, 4 रॉलेट सत्याग्रह। कूट
ए 4312, बी 1234, सी 4213 या डी 1423? उत्तर है सी 4213। रोलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग जनसंहार, खिलाफत आंदोलन और अंत में बारडोली का किसान आंदोलन। प्रश्न 58, इनमें से कौन सा दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया? विकल्प हैं ए सितंबर 20, 2018, बी मार्च 20, 2018, सी जनवरी 20, 2018, डी फरवरी 20, 2018। उत्तर है डी फरवरी 20, 2018। प्रश्न 59, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार इनमें से किस विशेषता का संबंध शीतोष्ण से है? ए सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है, बी सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या अधिक होता है, सी संभावित वाष्पीकरण संघनन से अधिक हो जाता है, या डी मध्य देशांतरीय मौसमी वर्ष के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। उत्तर है डी मध्य देशांतरीय मौसमी वर्ष के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। प्रश्न 60, इनमें से किस स्थान पर समुद्र सतह से नीचे धान की खेती का काम किया जा रहा है? विकल्प है ए जीरो वैली, बी तंजावुर, सी मंगलौर या डी कुट्टनाड। उत्तर है डी कुट्टनाड। समुद्र सतह से नीचे धान की खेती कुट्टनाड यानी केरल में की जाती है। 2. तार्किक योग्यता। प्रश्न 61, उस सही विकल्प को चुनिए जिसका सही वही संबंध तीसरे पद है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है। ये प्रश्न आकृति वाला प्रश्न है, कृपया इसके लिए आप अपने साथी की मदद लें। प्रश्न 62, इनमें से किस उत्तर में नीचे दिए गए शब्दों का क्रम शब्दकोश के क्रम के अनुसार है? नंबर 1 एपिटाफ, नंबर 2 एपिलोग, नंबर 3 एपिग्राफ, 4 epithet and 5 epileptic. Answer is number 1 epigraph, number 2 epileptic, number 3 epilogue, number 4 epitaph and in the last epithet. प्रश्न 63, रवि तथा मोहन हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन तथा रवि क्रिकेट और बेसबॉल में अच्छे हैं। गौरव तथा मोहन हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन, गौरव तथा माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। इनमें से कौन कौन हॉकी तथा वॉलीबॉल में अच्छे हैं? ए रवि, मोहन तथा सचिन, बी रवि, मोहन तथा गौरव, सी मोहन, गौरव तथा माइकल, डी गौरव, सचिन तथा मोहन। उत्तर है बी रवि, मोहन तथा गौरव। रवि प्लस मोहन प्लस गौरव हॉकी तथा वॉलीबॉल, सचिन प्लस रवि क्रिकेट तथा बेसबॉल, सचिन प्लस गौरव प्लस माइकल फुटबॉल तथा बेसबॉल। प्रश्न 64, उस विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध तीसरे पद से है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है। टेनिस कोर्ट, क्रिकेट प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प है ए रिंग, बी ग्राउंड, सी पिच या डी स्टेडियम। उत्तर है डी स्टेडियम। टेनिस कोर्ट, क्रिकेट स्टेडियम। प्रश्न 65, उस सही विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध तीसरे पद से है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है। 1 2 3 4 is to 24, 3 1 5 4 is to। Options are A 44, B 60, C 35, D 54। Answer is B 60। जिस प्रकार 1 into 2 into 3 into 4 is equals to 24, उसी प्रकार 3 into 1 into 5 into 4 is equals to 60। प्रश्न 66, लुप्त संख्या को भरिए। यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं, 821, 875 एंड देन क्वेश्चन मार्क। दूसरा कॉलम में सभी ब्रैकेट में दिए गए हैं, 40, 42, 44। तीसरे कॉलम में 779, 889, 999। Options are A 919, B 929, C 937 और D 947। Answer is B 929।
821 plus 54, 875 plus 54, 929. 40 plus 2, 42, 42 plus 2, 44. 779 plus 110, 889 plus 110, 999. प्रश्न 67. किसी कूट भाषा में शब्द ट्रिप को कूट QJSU द्वारा दर्शाया गया है. कूट LSDP का संगत शब्द है. विकल्प है A रॉक, B कॉर्क, C पोर्क या D रक. आंसर इज B कॉर्क. जिस प्रकार TRIP इसको +1, T+1 is U, R+1 is S, I+1 is J, P+1 is Q, उसी प्रकार कॉर्क C+1 D, O+1 P, R+1 S, K+1 L. प्रश्न 68. किसी वर्गाकार कागज को मोड़कर छिद्रित किया गया है. इनमें से उस आकृति को चुनिए जो बिना मुड़े कागज की स्थिति के काफी सदृश है. कृपया इस प्रश्न के लिए आप अपने साथी की मदद लें. प्रश्न 69. उस सही विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध तीसरे पद से है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है. KCA is to HBE, EBH is to question mark. Options are A CBM, B CGE, C BCM या D CBE. Answer is B CGE. KCA K11 C plus 3 A plus 1 is equals to 15. H 8 B plus 2 E plus 5 is equals to 15. E 5 B plus 2 H plus 8 is equals to 15. CGE C 3 G plus 7 E plus 5 is equals to 15. प्रश्न 70. नीचे संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं. इनमें से एक समूह अन्य 3 से किसी आधार पर भिन्न है. उस भिन्न समूह को पहचानिए. ऑप्शंस आर A 12 24 48 36, B 8 16 32 24, C 15 30 60 45, D 9 18 45 27. Answer is D 9 18 45 27. 12 into 2 24 into 2 48 into 3 upon 4 is 46. 8 into 2 16 into 2 32 into 3 upon 4 24. 15 into 2 30 into 2 60 into 3 upon 4 45. 9 into 2 18 into 2 45 into 3 upon 5 27. प्रश्न 71. जयति उत्तर की दिशा में 12 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ती है तथा 6 किलोमीटर चलती है. वो फिर दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है. इसके बाद वो दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है. वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? विकल्प है A 25 किलोमीटर, B 13 किलोमीटर, C 18 किलोमीटर या D 19 किलोमीटर. उत्तर है D 19 किलोमीटर. प्रश्न 72. इनमें से कौन सा आरेख चोर, पुलिस तथा अपराधी को निरूपित करता है? ये प्रश्न आकृतियों वाला प्रश्न है. कृपया इसके लिए आप विषय विशेषज्ञ की सलाह लें. प्रश्न 73. जॉर्ज विद्यालय से पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है. वो दाएं मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है. वो फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंच जाता है. जॉर्ज का घर विद्यालय से किस दिशा में अवस्थित है? विकल्प है A दक्षिण पूर्व, B पूर्व, C उत्तर, D उत्तर पश्चिम. उत्तर है A दक्षिण पूर्व. प्रश्न 74. 6 वर्ष पूर्व ध्रुव की उम्र उसकी बहन रीमा की उम्र की दोगुनी थी. यदि इन दोनों की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 हो तो रीमा की वर्तमान उम्र क्या है? विकल्प है A 15 वर्ष, B 12 वर्ष, C 9 वर्ष या D 6 वर्ष. उत्तर है C 9 वर्ष. माना ध्रुव तथा रीमा की वर्तमान आयु 4x व 3x वर्ष है. प्रश्नानुसार within bracket 4x minus 6 bracket close is equals to 2 within bracket 3x minus 6.
4x minus 6 is equals to 6x minus 12. 2x is equals to 6. x is equals to 3. रीमा की वर्तमान आयु 3 into 3 9 years. पृष्ठ 126. प्रश्न 75. इनमें से सही विकल्प को चुनिए जिससे श्रृंखला पूरी हो. CXDW, EVFU, GTHS, IRJQ, question mark. Options are A. KPJM, B. KMIN, C. KPLO, D. KQNR. उत्तर है C. KPLO. C plus 2 E, X minus 2 V, D plus 2 F, W minus 2 U. इसी तरह सब में +2 -2 +2 -2 करते हुए हमें उत्तर मिलता है KPLO. प्रश्न 76. किसी परिवार में 4 बहनें हैं. इनमें से नवनूर मानवी से छोटी पर तोषाणा से बड़ी है. साधिका तोषाणा से बड़ी पर नवनूर से छोटी है. सबसे बड़ी को संख्या 1 आवंटित की गई है तथा संख्या 4 सबसे छोटी को आवंटित की गई है. इनमें से संख्या 2 कौन है? विकल्प है A. तोषाणा, B. साधिका, C. मानवी या D. नवनूर. उत्तर है D. नवनूर. प्रश्न 77. चिन्हित उत्तर आकृतियों A, B, C और D में से कौन सी आकृति मुख्य यानी दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है? कृपया इस प्रश्न के लिए आप विषय विशेषज्ञ की सलाह लें. प्रश्न 79. निम्नलिखित अक्षर समूहों में से उस एक समूह को चुनिए जो किसी मामले में अन्य 3 समूहों से भिन्न है. विकल्प है A. DHLP, B. MQUY, C. JNRV या D. TYDI. उत्तर है D. TYDI. D plus 4H plus 4L plus 4P, M plus 4Q plus 4U plus 4Y, J plus 4N plus 4R plus 4V, T plus 5Y plus 5D plus 5I. प्रश्न 80. अभिकथन के नीचे विकल्प के रूप में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं. अपनी ओर से कोई विश्लेषण किए बगैर अभिकथन को अनुसरण करने वाले निष्कर्ष का चयन कीजिए. अभिकथन: उस दुकान में अधिकांश खिलौने महंगे हैं. निष्कर्ष: A. उस दुकान में केवल जापानी खिलौने महंगे हैं. B. उस दुकान में सस्ते खिलौने भी हैं. C. उस दुकान में कोई सस्ते खिलौने उपलब्ध नहीं हैं. D. उस दुकान में कुछ खिलौने महंगे हैं. उत्तर है B. उस दुकान में सस्ते खिलौने भी हैं. प्रश्न 81. 6 सितंबर 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन था? विकल्प है A. बुधवार, B. शुक्रवार, C. रविवार या D. मंगलवार. उत्तर है B. शुक्रवार. प्रश्न 82. आकृतियों के 2 समुच्चय हैं, एक प्रश्न आकृति तथा अन्य उत्तर आकृति. कृपया इस प्रश्न के लिए आप विषय विशेषज्ञ की सलाह लें. प्रश्न 83. यदि 24 बराबर 72 और 53 बराबर 152 तो 36 का मान क्या होगा? विकल्प है A. 243, B. 225, C. 326 या D. 189. उत्तर है A. 243. जिस प्रकार 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 8 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 22 तथा 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 125 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 152, उसी प्रकार 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब इज इक्वल्स टू 27 प्लस 216 इज इक्वल्स टू 243. प्रश्न 84 आकृति वाला प्रश्न है. कृपया इसके लिए आप विषय विशेषज्ञ की सलाह लें. प्रश्न 85. एक शब्द दिया गया है. इस शब्द के नीचे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं. इन 4 में से एक शब्द ऐसा है जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग कर नहीं बनाया जा सकता. उस शब्द को बताइए. ऑटोग्राफ्स. विकल्प है A. रफ, B. ग्राफ, C. पैथोस, D. ग्रेट. उत्तर है D. ग्रेट. दिए गए शब्द में अक्षर ई नहीं है, अतः शब्द ग्रेट नहीं बनाया जा सकता. प्रश्न 86. ये आकृति वाला प्रश्न है. कृपया इसके लिए विषय विशेषज्ञ की सलाह लें. प्रश्न 87. नीचे एक पता दिया गया है. इनमें से इस पते का हूबहू समानता वाला विकल्प चुनिए. मिस्टर A. आचार्युलू, 38 ट्रिप्लिकन, भुवनेश्वर,
560065. Options are A. Mr. A. Acharyulu 38 Triplicane Bhubaneswar 560065. इसका उत्तर है सी. मिस्टर ए आचार्युलू 38 Triplicane भुवनेश्वर 560065. प्रश्न 88. अभिकथन भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों के आधार पर असंगत लगते हों, पर उन्हें सही मानकर ये निर्णय कीजिए कि दिए गए अभिकथनों के तर्कपूर्ण अनुसरण में इनमें से कौन से सही हैं. अभिकथन ए. सभी कलम पुस्तकें हैं. बी. सभी रबर पुस्तकें हैं. निष्कर्ष पहला, कुछ कलम रबर हैं. दूसरा, कुछ पुस्तकें कलम हैं. विकल्प है ए. केवल निष्कर्ष पहला सही है. बी. केवल निष्कर्ष दूसरा सही है. सी. निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सही हैं. या डी. न निष्कर्ष पहला और न निष्कर्ष दूसरा सही है. उत्तर है बी. केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, यानी कुछ पुस्तकें कलम हैं. प्रश्न 89. यहाँ आकृति वाला प्रश्न दिया गया है. कृपया इसके लिए आप विषय विशेषज्ञ की सलाह लें. प्रश्न 90. भारत के 5 राज्यों में मक्के की उपज लाख टन में संबंधी निम्नलिखित सारणी का अध्ययन कीजिए और इसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए. पृष्ठ 127. राज्य ए. वर्ष 2012-13 में 23.2, 2013-14 19.6, 2014-15 24.5, 2015-16 26.0. बी. 2012-13 18.6, 2013-14 18.6, 2014-15 20.6, 2015-16 25.4. राज्य सी. 2012-13 28.4, 2013-14 25.6, 2014-15 26.4, 2015-16 25.8. राज्य डी. 2012-13 20.9, 2013-14 28.6, 2014-15 23.4, 2015-16 27.6. राज्य ई. 2012-13 19.8, 2013-14 20.2, 2014-15 22.4, 2015-16 26.3. किस राज्य में मक्के की उपज वर्ष दर वर्ष लगातार बढ़ी है? विकल्प है ए. बी, बी सी, सी डी या डी ई. उत्तर है डी, यानी ई राज्य में मक्के की उपज वर्ष दर वर्ष लगातार बढ़ी है. प्रश्न 91. इनमें से उस एक को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है. विकल्प है ए. कड़ी जोड़ना लिंक, बी. बंधन में जुड़ना बॉन्ड, सी. कंटिया लगाना हुक या डी. संबद्ध करना कनेक्ट. उत्तर है सी. कंटिया लगाना हुक. प्रश्न 92. यदि 84 + 29 = 15 तथा 52 + 16 = 10 हो तो इसी तर्क के आधार पर 83 + 25 का मान है. ऑप्शंस आर ए. 17, बी. 13, सी. 9 और डी. 12. आंसर इज डी. 12. जिस प्रकार 8 + 2 = 10, 9 - 4 = 5, तब 10 + 5 = 15 तथा 5 + 1 = 6, 6 - 2 = 4, तब 6 + 4 = 10. उसी प्रकार 8 + 2 10, 5 - 3 2, तब 10 + 2 is 12. प्रश्न 93. बॉल की कीमत कितनी है? अभिकथन पहला, हॉकी की स्टिक तथा इसके बॉल की कीमत 650 रुपए है. अभिकथन 2, हॉकी की स्टिक की कीमत इसके बाल की दोगुनी कीमत से 20 रुपए अधिक है. ए. केवल अभिकथन पहले में दिए गए आंकड़े प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त हैं. बी. केवल अभिकथन दूसरे में दिए गए आंकड़े प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त हैं. सी. दोनों अभिकथनों में दिए गए आंकड़े प्रश्न के उत्तर के लिए अनिवार्य हैं. डी. अभिकथन पहला और दूसरे में दिए गए आंकड़े प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त नहीं हैं. उत्तर है सी. दोनों अभिकथनों में दिए गए आंकड़े प्रश्न के उत्तर के लिए अनिवार्य हैं. प्रश्न 94 आकृति वाला प्रश्न है. कृपया इसके लिए आप विषय विशेषज्ञ की सलाह लें. प्रश्न 95 श्रृंखला को पूरा कीजिए. 4, 6, 9, 13 and half,
comma, question mark. Options are A. 22 3/4, B. 20 1/4, C. 18 and a half, or D. 17 and a half. Answer is B. 20 1/4. 4 into 1.5 6 into 1.5 9 into 1.5 13 and a half into 1.5 20 1/4. प्रश्न 96. किसी कूट भाषा में प्रिंट को RQGOS लिखा जाता है. इस कूट भाषा में ड्रीम को किस प्रकार लिखा जाएगा? विकल्प है A. FQCBL, B. EIGBN, C. CPGBL या D. FTGCO. उत्तर है A. FQCBL. जिस प्रकार P+2R, R-1Q, I-2G, N+1O, T-1S, उसी प्रकार D+2F, R-1Q, E-2C, A+1B, M-1L, FQCBL. प्रश्न 97. 5 महिलाएं ABCDE दक्षिण की ओर मुंह कर एक पंक्ति में बैठी हुई हैं. 5 पुरुष LMNOP उस पंक्ति के समांतर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं. पहला, A तथा L एक दूसरे के विकर्णाभिमुख हैं. 2. M पंक्ति के एक छोर पर है. 3. D E के ठीक बाएं तथा O के सामने है. 4. P M के ठीक बाएं तथा B के सामने है. 5. E N के सामने है जो L के ठीक दाएं है. कौन पुरुष अपनी पंक्ति के मध्य में बैठा है? विकल्प है A L, B O, C P या D N. उत्तर है B O. प्रश्न 98. किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए शशि कहती है, वो मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है. उस लड़के का शशि से क्या संबंध है? विकल्प है A भाई, B चचेरा चचेरी भाई बहन, C चाचा या D चाची. उत्तर है A भाई. प्रश्न 99. ये आकृति वाला प्रश्न है, कृपया इसके लिए आप विषय विशेषज्ञ की सलाह लें. प्रश्न 100. किसी घन के सभी फलकों को नीले रंग से रंगा जाता है. इसे काटकर 64 छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है. अब ये घन अलग अलग हैं. रंग विहीन फलकों वाले छोटे घनों की संख्या है A 4, B 8, C 16 या D 12. उत्तर है B 8. कुल घनों की संख्या n cube is equals to 63, n is equals to cube root 64 is equals to 4. रंग विहीन फलकों की संख्या 4 minus 2 whole cube is equals to 2 cube is equals to 8. 3. कंप्यूटर साक्षरता. प्रश्न 101. वे उपकरण जो कंप्यूटर में सूचना की प्रविष्टि करते हैं और उसके साथ संवाद करते हैं डैश कहलाते हैं. विकल्प है A आउटपुट, B इनपुट, C हार्डवेयर या D स्टोरेज. उत्तर है B इनपुट. निवेश यंत्र यानी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी प्रयोगकर्ता या अन्य प्रणाली से किसी कंप्यूटर तक सूचना ले जाए. प्रश्न 102. MS पावर पॉइंट के स्लाइड शो में कौन सा काम संभव है? 1. किसी वेबसाइट को ब्राउज करना. 2. यूट्यूब वीडियो चलाना. 3. कक्षा का परिणाम तैयार करना. विकल्प है A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या D 1, 2 और 3. उत्तर है D 1, 2 और 3. ML पावरपॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट में शामिल एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. प्रश्न 103. कंप्यूटर सिस्टम में सभी डाटा को डैश के रूप में निरूपित किया जाता है. विकल्प है A केवल 2 अंकों -0 और 1 के द्वारा, B अंकों और वर्णों के द्वारा, C अंकों, वर्णों और प्लस, माइनस, स्टार, डॉलर आदि चिन्हों के द्वारा, या D कीबोर्ड पर दिखाई देने वाली सभी भाषाओं के अंकों और वर्णों के द्वारा. उत्तर है A केवल 2 अंकों -0 और 1 के द्वारा. प्रश्न 104. निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में MS ऑफिस फाइलों का एक्सटेंशन अंतर्निहित है? विकल्प है A XLSX, डॉक्स, PDFX, B XLSX, डॉक्स, PPTX, C XLS, डॉक, PDF या D PPT, डॉक,
PDF। उत्तर है बी XLSX, डॉक्स, PPTX। प्रश्न 105। MS एक्सेल का प्रयोग करके इनमें से कौन से कार्य किए जा सकते हैं? 1. विद्यार्थियों का परिणाम तैयार करना। 2. भारतीय शास्त्रीय गायकों का उनके घराने के साथ नाम स्टोर करना। 3. म्यूजिक वीडियो चलाना। विकल्प है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। उत्तर है ए केवल 1 और 2। प्रश्न 106। VGA से तात्पर्य है ए वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे, बी वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, सी वीडियो ग्राफिक्स एरे या डी विजुअल ग्राफिक्स एरे। उत्तर है सी वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे विशेष रूप से उन प्रदर्श हार्डवेयरों की व्याख्या करता है जिन्हें पहली बार IBM ने 1987 में PS-2 कंप्यूटरों में प्रयोग किया था। पृष्ठ 128। प्रश्न 107। एनालॉग लाइनों पर डिजिटल डाटा ले जाने को क्या कहते हैं? विकल्प है ए मल्टीप्लेक्सर, बी मॉड्यूलेटर, सी मॉडेम या डी डीमॉड्यूलेटर। उत्तर है सी मॉडेम। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो किसी आंकिक सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। प्रश्न 108। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम या एक डिस्क से दूसरे डिस्क तक फैले एक व्यवधानकारी प्रोग्राम को कहते हैं। विकल्प है ए टाइम बम, बी ट्रोजन हॉर्स, सी वायरस या डी टाइम रिलेटेड बम सीक्वेंस। उत्तर है सी वायरस। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। प्रश्न 109। वर्कशीट MS एक्सेल में संख्यात्मक डाटा प्रविष्टि पूर्व निर्धारित रूप से कहाँ होती है? विकल्प है ए सेंटर, बी लेफ्ट, सी राइट या डी टॉप। उत्तर है सी राइट। प्रश्न 110। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का प्रयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? विकल्प है ए कॉपी एंड पेस्ट, बी कट एंड पेस्ट, सी ड्रैग एंड ड्रॉप या डी प्लग एंड प्ले। उत्तर है सी ड्रैग एंड ड्रॉप। 4. शिक्षा शास्त्र। प्रश्न 111। समग्र मूल्यांकन का प्रयोग आमतौर पर किस में नहीं किया जाता है? विकल्प है ए उपचारण में, बी ग्रेड प्रदान करने में, सी अगले ग्रेड में कक्षोन्नति में, डी वर्गीकरण में। उत्तर है ए उपचारण में। प्रश्न 112। विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कोर्स को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? विकल्प है ए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, बी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, सी सामाजिक रक्षा मंत्रालय या डी भारतीय पुनर्वास परिषद। उत्तर है ए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। प्रश्न 113। प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? विकल्प है ए जोखिम उठाना, बी तुरंत जवाब देना, सी सक्रिय होकर सुनना या डी गैर शाब्दिक संकेत। उत्तर है सी सक्रिय होकर सुनना। प्रश्न 114। एक अध्यापक इस आशा से एक स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने का सचेतन प्रयास करता है कि उसके छात्र भी इसी तरह का व्यवहार करेंगे। इनमें से कौन सा सिद्धांत अध्यापक के व्यवहार को स्पष्ट करता है? विकल्प है ए रूप देना शेपिंग, बी मॉडलिंग, सी संकेत देना क्यूइंग या डी पुनर्बलन। उत्तर है डी पुनर्बलन। ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट कहलाती है। मानव द्वारा सीखे हुए अधिकांशतः व्यवहार की व्याख्या हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सहयोग से कर सकते हैं। प्रश्न 115। IEDC निशक्तों के लिए समेकित शिक्षा सर्वप्रथम कब आरंभ की गई थी? विकल्प है ए 1960 के दशक में, बी 1970 के दशक में, सी 1980 या डी 1990। उत्तर है बी 1970 के दशक में। प्रश्न 116। छात्रों में पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? विकल्प है
ए भाषा संबंधी खेल, बी नाटक, सी वाद विवाद या डी संगीत। उत्तर है ए भाषा संबंधी खेल। प्रश्न 117। एक चयन परीक्षा में विभिन्न बोर्डों से पास हुए छात्र भाग ले रहे हैं। उनके उपलब्धि अंकों की संख्या करने की सर्वोत्तम तकनीक क्या है? विकल्प है ए संबंधित बोर्डों का मध्यमान, बी टी स्कोर, सी टी परीक्षण या डी संबंधित बोर्डों का परास। उत्तर है बी टी स्कोर। प्रश्न 118। लोगों का प्रदर्शन का निर्दिष्ट स्तर उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर प्रभाव डालते हैं को किस पद द्वारा जाना जाता है? विकल्प है ए स्व संकल्पना, बी स्व आत्मसम्मान, सी स्व योग्यता या डी स्व क्षमता। उत्तर है डी स्व क्षमता। प्रश्न 119। जब अध्यापक कोई ऐसा कार्य देता है जो छात्रों के वर्तमान क्षमता स्तर से ऊपर का हो तो ये संभावना होती है कि विकल्प है ए उसे किसी विषय वस्तु को कई बार दोहराना पड़ सकता है, बी एक संप्रेषण अवरोध पैदा हो सकता है, सी छात्रों में रुचि और प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है या डी शोर के प्रभाव को न्यूनतम हो सकता है। उत्तर है ए उसे किसी विषय वस्तु को कई बार दोहराना पड़ सकता है। प्रश्न 120। अधिकतम प्रभाविता के लिए ये आवश्यक है कि अनुक्रिया का पुनर्बलन, विकल्प है ए अनुक्रिया के तुरंत पश्चात होना चाहिए, बी अनुक्रिया के पहले होना चाहिए न कि बाद में, सी अधिकतम बलशाली होना चाहिए या डी इसमें सही अनुक्रियाओं को पुरस्कृत व गलत अनुक्रियाओं को दंडित साथ साथ किया जाना चाहिए। उत्तर है ए अनुक्रिया के तुरंत पश्चात होना चाहिए। अधिकतम प्रभाविता के लिए ये आवश्यक है कि अनुक्रिया का पुनर्बलन अनुक्रिया के तुरंत पश्चात होना चाहिए। प्रश्न 121। इनमें से कौन सा विकासात्मक विकार नहीं है? विकल्प है ए वाचन वैकल्य, बी स्वलीन वर्णक्रम विकार यानी आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सी ADHD या डी प्रमस्तिष्क घात। उत्तर है ए वाचन वैकल्य। प्रश्न 122। एक देशी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी नहीं होती है? विकल्प है ए महंगी, बी दूर स्थानों से लाई गई सामग्री से निर्मित, सी स्थानीय तौर पर विकसित या डी प्रासंगिक। उत्तर है बी दूर स्थानों से लाई गई सामग्री से निर्मित। प्रश्न 123। कई वर्षों में एकत्र किए गए मात्रात्मक व गुणवत्तापरक आंकड़ों के आधार पर मूल्य निर्णयन अथवा महत्व आंकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकल्प है ए परीक्षा, बी मापन, सी आकलन या डी मूल्यांकन। उत्तर है डी मूल्यांकन। कई वर्षों में एकत्र किए गए मात्रात्मक व गुणवत्तापरक आंकड़ों के आधार पर मूल्य निर्णयन अथवा महत्व आंकने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। प्रश्न 124। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अपने बाएं हाथ का प्रयोग करता है तो आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? विकल्प है ए उसे बायां हाथ प्रयोग करने से हतोत्साहित करेंगे, बी उस पर ध्यान नहीं देंगे, सी चिकित्सीय सहायता लेंगे या डी उसे अपनी प्राथमिकता के अनुसार हाथ का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। उत्तर है डी उसे अपनी प्राथमिकता के अनुसार हाथ का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। प्रश्न 125। पाठ्यपुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क ये दिया जाता है कि ए पाठ्यपुस्तकें आसानी से उपलब्ध होती हैं, बी पाठ्यपुस्तकें शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का विकास करने में मदद करती हैं, सी पाठ्यपुस्तकें ये सुनिश्चित करती हैं कि शिक्षार्थियों द्वारा कितनी न्यूनतम प्रामाणिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है या डी पाठ्यपुस्तकों की लागत कम होती है। उत्तर है बी पाठ्यपुस्तकें शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का विकास करने में मदद करती हैं। पृष्ठ 129। प्रश्न 126। दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से अधिकाधिक सीख सकता है? विकल्प है ए स्पर्शनीय आदानों से, बी गतिबोधक प्रणाली से, सी श्रवण प्रणाली से या डी अधिगम साधनों से। उत्तर है सी श्रवण प्रणाली से। प्रश्न 127। स्व क्षमता की कम समझ वाले छात्र अपने खराब प्रदर्शन का कारण किसे बताते हैं? विकल्प है ए क्षमता की कमी, बी प्रयास की कमी, सी निर्देशों को गलत समझना या डी पढ़ने का प्रयास न करना। उत्तर है बी प्रयास की कमी।
प्रश्न 128 किसी छात्र की जरूरतों को समायोजित करने के लिए मूल्यांकन सामग्री पाठ्यक्रम या कक्षा के वातावरण को समायोजित करना ताकि वो उसमें भाग ले सके और शिक्षण व अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कर सके कहलाता है। ए अनुकूलन, बी आत्मसातकरण, सी रूपांतरण, डी वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम। उत्तर है डी वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम। प्रश्न 129 शिक्षार्थियों के सामाजिक विकास में किस संसाधन का कार्यक्षेत्र अधिकतम है? विकल्प है ए संग्रहालय, बी प्रयोगशालाएं, सी समुदाय या डी पुस्तकालय। उत्तर है सी समुदाय। प्रश्न 130 समावेशन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? विकल्प है ए सामाजिक अवरोध, बी संप्रेषण में समय की बर्बादी, सी गलतफहमी या डी भौतिक अवरोध। उत्तर है ए सामाजिक अवरोध। समावेशन से तात्पर्य एक विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और दिव्यांग को समान शिक्षा प्रणाली के अवसर मिलने चाहिए। प्रश्न 131 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में अधिक उपयोग नहीं हो सका है क्योंकि विकल्प है ए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश समय बिजली नहीं होती है, बी ग्रामीण जनसंख्या की आईसीटी के प्रति अधिक सकारात्मक सोच नहीं होती है, सी आईसीटी काफी खर्चीली है या डी आईसीटी में जटिल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उत्तर है सी आईसीटी काफी खर्चीली है। प्रश्न 132 शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है ए एडुसैट, बी इनसैट बी, सी इनसैट सी या डी सातेदू। उत्तर है ए एडुसैट। शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह एडुसैट है जो इटालियन माइक्रो सैटेलाइट के द्वारा अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया। प्रश्न 133 एक बाधित बालक निशक्तता का तब अनुभव करता है जब विकल्प है ए उसे अधूरे काम के लिए डांटा जाता है, बी उसके किसी कार्य के निष्पादन की कक्षा के अध्यापक द्वारा प्रशंसित नहीं किया जाता है, सी वो ऐसे वातावरण में काम कर रहा है जो किसी काम में बालक के सफल प्रदर्शन पर प्रभाव डालता है, या डी उसकी लगातार उन बालकों से तुलना की जाती है जो कतिपय काम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उत्तर है डी उसकी लगातार उन बालकों से तुलना की जाती है जो कतिपय काम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। प्रश्न 134 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की सबसे बेहतर कार्यनीति इनमें से कौन सी है? विकल्प है ए कक्षा में चर्चा करना जिसमें अधिकांश विद्यार्थी शामिल किए गए हों, बी अध्यापक द्वारा प्रदर्शन जिसमें विद्यार्थियों को शामिल किया गया हो, सी सहकारी अधिगम और सहयोगी विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाया जाना, या डी शिक्षण के लिए क्षमता समूह बनाना। उत्तर है सी सहकारी अधिगम और सहयोगी विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाया जाना। प्रश्न 135 एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण दूरसंचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं? विकल्प है ए ऑनलाइन कम्युनिकेशन, बी इंटीग्रेटेड मीडिया, सी चैट रूम या डी अभिसारिता। उत्तर है बी इंटीग्रेटेड मीडिया। एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण दूरसंचार और मीडिया को मिलाने को इंटीग्रेटेड मीडिया कहते हैं। प्रश्न 136 सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प है ए अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने में सहायता देना, बी विचार प्रक्रिया पर बल देना और स्मरण पर कम बल देना, सी बालकों की प्रगति से माता पिता को संतुष्ट करना, या डी प्राधिकारियों को विद्यालय के कार्यकरण की निगरानी करने में सहायता देना। उत्तर है बी विचार प्रक्रिया पर बल देना और स्मरण पर कम बल देना। प्रश्न 137 बालकों को अनुशासित करने में बालकों को चांटा मारने और पीटने को उपयुक्त नहीं माना जाता है। कठोर दंड के विकल्प के रूप में आप इनमें से किस तकनीक की सिफारिश करेंगे? 1 कक्षा से बाहर करना, 2 विशेषाधिकार वापस लेना, 3 प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग। विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी 1, 2 और 3। उत्तर है सी 1 और 2 यानी कक्षा से बाहर करना और दूसरा विशेषाधिकार वापस लेना। प्रश्न 138 पाठ्यक्रम बनाते समय इनमें से क्या एक मानदंड नहीं है? विकल्प है ए अभिभावकों का शैक्षणिक स्तर,
बी पिछली परीक्षा में शिक्षार्थी का प्रदर्शन, सी शिक्षार्थी की क्षमताएं या डी शिक्षार्थी की आकांक्षाएं। उत्तर है ए अभिभावकों का शैक्षणिक स्तर। प्रश्न 139 मास्लो के आवश्यकता सोपान में इनमें से कौन सी आवश्यकता अस्तित्व हेतु आवश्यकता है? 1 सम्मान संबंधी आवश्यकता, 2 ज्ञानात्मक आवश्यकता, 3 सौंदर्यपरक आवश्यकता, 4 प्रेम और आत्मीयता। कूट ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 4 या डी 1, 3 और 4। उत्तर है बी 2 और 3। मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अपने इस सिद्धांत में मास्लो ने मानव आवश्यकताओं के कई स्तर बताए हैं। प्रश्न 140 शिक्षण की एक इकाई में होगा ए केवल एक अध्याय, बी केवल एक संकल्पना, सी अनेक अध्याय, डी केवल एक संकल्पना वाला एक अध्याय। उत्तर है सी अनेक अध्याय। प्रश्न 141 स्पीयरमैन का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत से संबंध ऐसा ही है जैसे विकल्प है ए गुणवत्ता का है मात्रा से, बी संस्कृति मुक्त का है संस्कृति निष्पक्षता से, सी अंतर्जात का है प्राप्य से या डी मौखिक का है निष्पादन से। उत्तर है डी मौखिक का है निष्पादन से। प्रश्न 142 निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार निशक्त व्यक्ति वो है जो किसी निशक्तता से कम डैश प्रतिशत से पीड़ित हो, जिसे किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अभिज्ञात किया गया हो। विकल्प है ए 40%, बी 30%, सी 50% या डी 60%। उत्तर है ए 40%। प्रश्न 143 करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का अनुभव कहलाता है। विकल्प है ए सक्रिय अनुकूलन, बी प्रतिस्थ अधिगम, सी एनेक्टिव अधिगम या डी समस्या समाधान। उत्तर है सी एनेक्टिव अधिगम। प्रश्न 144 अंतर्दृष्टि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ए नैसर्गिक प्रवृत्ति से नजदीकी रूप से संबंधित एक प्रकार की सहज बोध, बी किसी समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू करना, सी अनुभव का अकस्मात पुनर्गठन या डी रचनात्मकता में शामिल एक प्रकार की उत्प्रेरणा। उत्तर है ए नैसर्गिक प्रवृत्ति से नजदीकी रूप से संबंधित एक प्रकार की सहज बोध। पृष्ठ 130। प्रश्न 145 पाठ योजना के अनुसार पढ़ाते समय आमतौर पर अध्यापक किसे कम महत्व देते हैं? विकल्प है ए पूर्ववर्ती ज्ञान की जांच, बी प्रेरणात्मक प्रश्न, सी प्रस्तुतिकरण या डी ब्लैक बोर्ड लेखन। उत्तर है बी प्रेरणात्मक प्रश्न। प्रश्न 146 अधिगम की रचनावादी दृष्टि से केंद्रीय विचार है। 1 शिक्षार्थी अपने स्वयं का ज्ञान बनाने में सक्रिय रहते हैं। 2 छात्रों का पूर्व ज्ञान और विश्वास मुख्य आदान है। 3 अध्यापकों का संकलनात्मक ज्ञान गहरा होता है। 4 ज्ञान निर्माण में सामाजिक परस्पर क्रियाएं आवश्यक होती हैं। विकल्प है ए 1 और 2, बी 1 और 4, सी 1, 2 और 3 या डी 1, 2 और 4। उत्तर है बी 1 और 4, यानी शिक्षार्थी अपने स्वयं का ज्ञान बनाने में सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण में सामाजिक परस्पर क्रियाएं आवश्यक होती हैं। प्रश्न 147 पाठ्यचर्या उपागमों में से किस उपागम में शिक्षार्थी को अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है? विकल्प है ए विषय केंद्रित उपागम, बी अध्यापक केंद्रित उपागम, सी क्रिया केंद्रित उपागम या डी अनुभव केंद्रित उपागम। उत्तर है सी क्रिया केंद्रित उपागम। प्रश्न 148 प्रभाव के नियम का अर्थ है ए अनुक्रिया का सीखना या न सीखना उसके द्वारा प्रदत्त संतुष्टि पर निर्भर करता है, बी सही अनुक्रिया के लिए बाहरी पुरस्कार दिया जाना, सी अधिगम के लिए शिक्षार्थी के पास प्रेरणा और स्पष्ट रूप से पहचाना गया लक्ष्य हो, या डी गलत अनुक्रिया के लिए बाह्य दंड दिया जाए। उत्तर है ए अनुक्रिया का सीखना या न सीखना उसके द्वारा प्रदत्त संतुष्टि पर निर्भर करता है। प्रश्न 149 पाठ्यचर्या प्रतिमान देने का श्रेय किसे जाता है? विकल्प है ए ऑसबेल, बी हिल्डा ताबा, सी पियाजे या डी गिलफोर्ड। उत्तर है बी
हिल्डा ताबा। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 150। जब कोई छात्र किसी ज्यामितीय आकार को सही तरीके से वर्गीकृत करता है तो वो किसका निर्देशन करता है? विकल्प है ए घोषणात्मक ज्ञान, बी स्वविनयात्मक ज्ञान, सी प्रक्रियात्मक ज्ञान या डी परिस्थितीय ज्ञान। उत्तर है डी परिस्थितीय ज्ञान। पृष्ठ 131। इस पृष्ठ पर उत्तर दिए गए हैं जिन्हें प्रश्नों के साथ पहले पढ़ा जा चुका है। पृष्ठ 132।